2 minutes. Okay, everyone. So today we'll start this particular data type, dictionary data type. Remember, these all are data types. Whether we are talking about strings, चाहे हम string बोले, चाहे हम सिंपल वेरिएबल बोले, जैसे पाइथन में a is equal to 10 या name is equal to SBS, all these are data types. Similarly, the last thing that we have seen was of list. List is a collection of elements. Collection tha. For example, a is equal to 10 comma 20 comma 30. So list was collection of similar elements. It was collection of similar elements. Why I am calling it similar elements? Because all these are numeric numbers. So that is what we prefer the data type list when we are dealing with similar data elements. Now there is another data type called dictionary. Now, can anyone tell me what is the use of dictionary? How to use a dictionary in English language? How do we use it? क्या करते हम डिक्शनरी में अगर कुछ Sir, वर्ड खोजना है? we find a word We find the word. like it सर find the लेटर word लेटर and the मैच meaning करके जाते related हैं. to it. Meaning related to, okay, it is a The very meaning related to it. how do you find the word? What is the rule to find the word in सर हम वो dictionary? लेटर का सीरीज देखते हैं पहले सीरीज ए देखते हम, बी हाँ, ऐसे. Alphabetical. अल्फाबेटिकल देखते. तो इन ब्रीफ बोलूं, अगर मुझे कोई एक बुक देखनी है, बुक के पर्टिकुलर पेज में क्या है, तो मुझे उसके लिए क्या बुक के उस पेज में पहुंचना पड़ेगा, या मैं एक दूसरा तरीका भी है देखने का, उस पेज में क्या होगा, कैसे देख सकता हूँ? Index. इंडेक्सिंग से. एब्सोल्युटली राइट, इंडेक्सिंग से. सो हियर इन डिक्शनरी व्हाट इज इंपॉर्टेंट? Indexing is important. With the help of index we can go to that element, we can go to that page, we can go to that information. Similarly in python में भी यही चीज करने वाले हैं. A dictionary is also a data type. जैसे string एक data type है, collection of words, alphabets. एक simple number एक data type है. एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट एक डेटा टाइप है, लिस्ट कहलाता है. उसी तरह कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कम्स अंडर डिक्शनरी. अब यहाँ पे ये भी एक कलेक्शन है लिस्ट की तरह, ये भी एक कलेक्शन ही दिखेगा हमें, इट इज अ कलेक्शन. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिक्शनरी एंड अ लिस्ट? A dictionary is a collection of dissimilar, it can be a collection of dissimilar elements along with indexing. यहां पे एक इंडेक्सिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. इससे फायदा क्या होता है? इट इज इजियर टू सर्च एलिमेंट इन अ डिक्शनरी. जैसे हम एक डिक्शनरी में एक वर्ड को आसानी से सर्च कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है रूल अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे सेट है, पहले ए मिलेगा, फिर बी मिलेगा, फिर ए के अंदर ए बी ए सी एंड सो ऑन, वी मूव इट. सिमिलरली in list also we can search an element, in dictionary also we can search an element, but because of this indexing it becomes easier, and there are many ways to search the element in a dictionary. So how we will define a dictionary? One more time, just I'll repeat it, please pay attention to it. A dictionary is a collection of elements which can be dissimilar, and moreover it is in the form of index. The elements are arranged in the form of an index. Now how it is done, कैसा दिखता है, क्या रूल कहता है पाइथन में डिक्शनरी को अरेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक, लेट अस हैव अ लुक एट इट. देयर आर सम इंट्रोडक्शन गिवन, जस्ट गो थ्रू इट. एक बार तुम लोग पढ़ लेना इसे, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा और चीजें आसानी से हो जाएगी. जब एग्जांपल देखोगे तो और आपको ये समझ में आ जाएगा. नाउ लेट अस पे टू अटेंशन टू दिस पार्ट. Dictionaries are mutable. Can anyone tell me what does the word mutable means here? Changeable. Can We be can Changeable, change yes. the Lists are mutable or immutable? Mutable. म्यूटेबल. इट मींस दैट अगर एक लिस्ट बनी है 10 20 30 40, 30 की जगह मुझे 300 लिखना है, तो मैं बिल्कुल उसे म्यूटेबल, चूंकि वो म्यूटेबल है आई कैन चेंज इट. सो लिस्ट आर आल्सो म्यूटेबल, डिक्शनरीज आर आल्सो म्यूटेबल. देयर इज वन डेटा टाइप व्हिच इज कॉल्ड एज टपल. एक डेटा टाइप होता है टपल नाम का, जिसको मैं बाद में दिखाऊंगा तुम्हें, बहुत ब्रीफ दिया हुआ है इसमें. टपल के भी हम एग्जांपल डील करेंगे, कैसा दिखता है ये भी बताऊंगा. टपल्स आर आल्सो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स बट दे आर इम्यूटेबल. वो इम्यूटेबल होते हैं. रिमेंबर, दीज आर इम्यूटेबल मींस वी कैन नॉट चेंज इट. बट वी नो वन थिंग वेरी क्लियर फ्रॉम दिस वन, डिक्शनरीज आर म्यूटेबल. अनऑर्डर्ड कलेक्शंस, whereas list is ordered collection. And what they are collected in the form of two data. दो चीज रहती है, एक रहती है की
और एक रहती है वैल्यू। सी देयर इज अ कोलोन इन बिटवीन। एक डिक्शनरी के अंदर ये दो चीजें रहती हैं, की और वैल्यू। रिमेंबर द वर्ड की को मैं एक और नाम से पुकारूंगा, इसे मैं बोल सकता हूं की पॉइंट, जिसे हम इंडेक्स के रूप में जानते हैं, और एक इसे मैं बोलूंगा दूसरी चीजों को की वैल्यू। ओके, दैट इज हाउ द डिक्शनरी इज मेड अप ऑफ। सो यहां से हमें तीन चीजें पता चल रही है। पहली चीज, डिक्शनरी जो है म्यूटेबल है। दूसरी चीज, ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। और तीसरी चीज, एक डिक्शनरी के अंदर दो चीजें रहती हैं, एक रहता है की, या जिसे हम की पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा कहेंगे हम वैल्यूज, जिसे हम की वैल्यू नाम से भी जानते हैं। सो आई विल बी यूजिंग बोथ द टर्म्स, डोंट गेट कंफ्यूज। अगर मैं की बोल रहा हूं तो समझ जाना की पॉइंट की बात हो रही है, और अगर मैं सिर्फ वैल्यू बोल रहा हूं या की वैल्यू बोल रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पार्ट। ओके, नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन मेक अ डिक्शनरी इन अ पाइथन। पाइथन प्रोग्राम में डिक्शनरी कैसे बनता है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, हम सीधा कोडिंग पे आते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन, द फर्स्ट एग्जांपल। Let us create a dictionary. Rule number 1, dictionary is always enclosed within two curly braces. How a list is enclosed? List किसके अंदर रहता है? Can anyone tell me? Square brackets. Square bracket. Okay, absolutely right. List हमेशा square bracket के अंदर रहता है। String किसके अंदर रहता है? Double quotes के अंदर। Alright, so this is how you can identify. अगर ऐसा कुछ दिया है, अच्छा ये string है। ऐसा कुछ दिया है, ओके ये लिस्ट है। ऐसा कुछ दिया है, ओके दिस इज अ डिक्शनरी। ओके, सिमिलरली अगर इस ब्रेसेस के अंदर एनक्लोज्ड है तो वो क्या है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट Tuple. फंक्शन, वो होगा टपल। एब्सोल्युटली राइट। रिमेंबर ये भी कलेक्शन है 10 20 30, लिस्ट भी कलेक्शन है 10 20 30। दोनों ही कलेक्शन दिख रहे हैं, पर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर ये कि अ लिस्ट इज म्यूटेबल, इसमें हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जबकि इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, एज आई सेड आई विल बी डीलिंग विद टपल वन मोर टाइम। मैं एक बार फिर से टपल तुम्हें करके दिखाऊंगा, एग्जांपल दिखाऊंगा, बट राइट नाउ लेट अस हैव अ लुक एट अ डिक्शनरी। सो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ एम्प्टी डिक्शनरी, एक वेरिएबल का नाम रखा डी। डी ही क्यों रखेंगे, ए बी सी डी कुछ भी रख सकते हैं, सिंस डी स्टैंड्स फॉर डिक्शनरी, सो डी से ही चालू करते हैं। डी इज इक्वल टू ब्रेसेस खाली रखा, तो हमारा डी बन गया खाली डिक्शनरी। सेकेंड एग्जाम्पल, अब मैं डिक्ट वन नाम का, डिक्शनरी वन नाम का एक डिक्शनरी बना रहा हूं। हाउ टू मेक इट? एज यूजुअल, करली ब्रेसेस स्टार्ट हो रहा है, करली ब्रेसेस एंड हो रहा है, ये स्टार्टिंग है, ये एंड है। सो दिस इज माय डिक्शनरी। व्हाट इट इज हैविंग? इट इज गोइंग टू हैव टू थिंग्स, की, वैल्यू। यहां की का नाम क्या रखा गया है? आर, और आर का वैल्यू क्या दिया गया है? रेनी। सिमिलरली फर्स्ट एलिमेंट, सो दिस टुगेदर मेक्स द फर्स्ट एलिमेंट। ये दोनों मिलके बना रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट को। एलिमेंट में दो चीजें होती हैं, एक की होती है और एक वैल्यू होती है। की ठीक इंडेक्स की तरह है, उसकी पहचान है, उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। आर एक हमारा की हो गया, रेनी वैल्यू हो गई। सिमिलरली दूसरा एलिमेंट एस, समर, डब्ल्यू, विंटर, ए, ऑटम। सो नाउ द क्वेश्चन, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस डिक्शनरी dict1? व्हाट वुड बी योर आंसर? Therefore, 4। 4. एब्सोल्युटली राइट। मत बोलना 8 है, क्योंकि 8 चीजें दिख रही है। नो। ऑलराइट, एंड please tell the key of third element. Key of. So W. W, absolutely right. Please tell the value of second element. Summer. Summer. So you are getting the thing very clear. When I am talking about what is key, you are giving me the correct answer. What is the value? You are giving me the correct answer. How many elements are there? How a dictionary is declared in Python within curly braces. Any doubt? Any questions to be asked? Now the question comes. अब इस एग्जाम्पल को देख के एक सवाल सबसे पूछना तुम लोगों को जरूरी था कि सर क्या डिक्शनरी में सिर्फ ये कोट्स के अंदर स्ट्रिंग ही डील होता है या कैरेक्टर ही डील होता है? नो, अ डिक्शनरी कैन बी अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स। मिक्स भी रहेगा। जरूरी नहीं है कि की हमेशा एक कैरेक्टर रहे, ये एक नंबर भी हो सकता है। हम कुछ एग्जांपल आगे देखने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि वैल्यू जो है स्ट्रिंग रहे, वो एक नंबर भी हो सकता है, वो एक मिक्स फॉर्मेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एज लॉन्ग एज इट इज अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स। अभी तो इसको कलेक्शन देख के तो ये ऑर्डर्ड टाइप लग रहा है, बट सिंस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिक्शनरी, बिकॉज एक की पॉइंट है और एक की वैल्यू है।
ओके, सो दिस इज हाउ यू सर क्रिएट। हाँ बोलो। सर डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बन सकती है? एकदम बन सकती है। जब एक लिस्ट के अंदर लिस्ट बन सकती है तो एक डिक्शनरी के अंदर भी डिक्शनरी बन सकती है। ऑलराइट, पर अभी नहीं देखेंगे, अभी जस्ट स्टार्ट किया है, ठीक है, थोड़े दिनों बाद देखेंगे। ओके, नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल ऑफ अ डिक्शनरी। हियर इट इज D1। अब D1 में देखो, ये हो गए आपके कीज। किस तरह की कीज है? इंटीजर की है, दिख रहा है ना, नंबर है, कोई कोट्स के अंदर नहीं लिखा हुआ है। और ये हो गए वैल्यूज जो अंडरलाइन में कर रहा हूं, ये हो गए इसके वैल्यूज। किस तरह के वैल्यूज हैं? स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। Strings. इस एग्जांपल में कोई बता सकता है क्या है ये, किस तरह का डिक्शनरी है? D1, सेकंड वाला D1 नाम So, नाम, integers. इंटीजर की है और इंटीजर वैल्यू है। सो as I said, it's not necessary that dictionary has to have a string only. It can be a mixed collection, it can be a unordered collection. All right, so one important point to be considered: a dictionary can have same value but the key has to be different. What does it mean? मैंने अभी फिर से रिपीट कर रहा हूं, just pay attention. A dictionary can have same values but it cannot have same keys. मतलब समझ में आया? यस सर। यस, ठीक है ना। मतलब की जो है हमेशा अलग ही रहेगा, वो सेम नहीं हो सकता। अगर सेम करोगे तो एरर आ जाएगा। हाँ, वैल्यू सेम हो सकती है, डजंट मैटर। ओके, इट कैन बी, just a moment, it can be same, the values can be same but key has to be different. जैसे हम वो बोलते हैं ना एसक्यूएल में, प्राइमरी की सेम नहीं हो सकता, याद है ना एसक्यूएल का, कि वो अलग ही रहेगा, यस हर सर। वैल्यू अलग रहेंगे। हाँ ठीक है, पर प्राइमरी की नहीं है तो उसमें दो वैल्यू सेम, नाम सेम, दो नाम हो सकता है, सेम डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, सेम सैलरी हो सकती है, वैल्यूज कैन बी सिमिलर बट की हैज टू बी डिफरेंट। नाउ मेथड्स टू क्रिएट। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो प्लीज। डू यू वांट टू सी इन पाइथन? एक बार पाइथन में रन करके दिखाना पड़ेगा, डिक्शनरी बना के दिखाऊं एक, कि थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ, एक यस दो एग्जांपल और कर लेते फिर दिखाता हूँ, ठीक है। सो ठीक है सर। लेट अस सी द मेथड्स टू क्रिएट। एक डिक्शनरी कैसे कैसे हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि भैया एक खाली डिक्शनरी, एम्प्टी डिक्शनरी बनाना है, तो सिंपल सा एम्प्टी लिस्ट जैसे बनती थी उसी तरह D1 बनाया और खाली एक ओपनिंग क्लोजिंग कर दिया। टाइप D1 करोगे तो अब हमें आंसर दिख रहा है एक नया क्लास, डिक्ट क्लास, बिकॉज इट इज अनदर डेटा टाइप। जैसे इंट क्लास होता है, जैसे फ्लोट होता है, हमें दिखा है, जैसे स्ट्रिंग दिखा है, उसी तरह अब हमें यहाँ पे दिख रहा है डिक्ट क्लास। नाउ सेकेंड वे ऑफ मेकिंग अ डिक्शनरी, ये तो खाली बनाया, एम्प्टी बनाया, अब हम भरा हुआ डिक्शनरी बनाएंगे, विच इज गिवन बाय द प्रोग्रामर। एक ऐसा डिक्शनरी जिसमें वैल्यू प्रोग्रामर पहले से दे रहा है। तो चलो यहां देखते हैं कैसा ये बन रहा है। D2 नाम का एक डिक्शनरी बना, की रखा इनपुट और बोला कीबोर्ड, आउटपुट प्रिंटर, लैंग्वेज पाइथन, ओएस विंडोज 8। तो इससे क्या पता चल रहा है? ओके, की इनपुट की वैल्यू है कीबोर्ड, क्योंकि इनपुट, कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस, तो इसको इसने की बना दिया, आउटपुट को प्रिंटर वैल्यू दे दिया, एंड सो ऑन। जब हम प्रिंट D2 करेंगे तो देखो प्रिंट कैसा हो रहा है। हैव अ लुक एट द वे ऑफ प्रिंट आउट। चीजें वही प्रिंट हो रही है, सेम, सेपरेटेड बाय कॉमास एवरी एलिमेंट, एंड a single element is having two things separated by colon। ये colon यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक D बनाया, एम्प्टी डिक्शनरी, ये भी देखो एम्प्टी ही बन रहा है, पर दोनों में अंतर क्या है, कोई बता सकता है? ये जो D1 बना है पहला वाला, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी ब्रिंग बोथ द थिंग्स, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। हाँ, इस D1 के बनने में और इस D के बनने में क्या अंतर है, कोई बताएगा? So there we have used curly bracket, but here we have used the that keyword कीवर्ड dictionary in यस यस, वी DICT. हैव यूज्ड अ कीवर्ड। दोनों में ही हम एम्प्टी बना रहे हैं, एम्प्टी डिक्शनरी ही बन रही है, D1 भी खाली है और कैपिटल D भी खाली है। बनाने का तरीका ये है कि हियर वी हैव यूज्ड द braces to create the dictionary, whereas we are using a function, keyword function, keyword यूज कर रहे हैं।
ठीक है, डिक्ट नाम का उसे बनाने में। सो बोथ द मेथड्स आर देयर, वी हैव बोथ मेथड विद अस अवेलेबल, व्हिचएवर यू वांट टू प्रेफर यू कैन। अगर यहाँ पे भी मैं लिखूंगा सर टाइप डी तो ये वही दिखाएगा। टाइप क्या टाइप है इसका? क्लास डिक्शनरी को बिलोंग करता है। यस सक्षम, यू आर आस्किंग समथिंग? यस सर जैसे मैंने टपल में कुछ ऑलरेडी पहले लिख रखा है, मतलब ओके, a इज इक्वल टू मैंने कोई वैल्यू डिसाइन कर रखी है और फिर डिक्ट लिख के मैं उसका एकदम सब सही। लिस्ट में कर देता, लिस्ट और बन जाती थी, खुशी खुशी कर दोगे, डिक्शनरी बन यहाँ भी जाएगा। हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल L इज इक्वल टू 10 20 30 किया। अब इसे डिक्शनरी बनाना है तो हम उसको मदद से बना सकते हैं, पर थोड़ा सा अंतर रहेगा। क्यों अंतर रहेगा? क्योंकि देखो डिक्शनरी में दो चीजें रहती है। क्या रहती है? की रहती है और एक वैल्यू रहती है। वैल्यू तो आपने दे दिया, वो बाय डिफॉल्ट की आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए हम कर तो सकते हैं, पर हमें थोड़े से मैनिपुलेट करना पड़ेगा। आगे जाके देखने वाले हैं इस चीज को। वी विल सी, डोंट यू वरी अबाउट इट, सब दिखेगा। ठीक है सक्षम, बात समझ में आई? यस सर। ओके, नाउ सम एग्जांपल्स लाइक, हाँ अब ये देखो एक अच्छी चीज मिलेगी। अब एक्सेसिंग द एलिमेंट्स, अब हम एलिमेंट एक्सेस करेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक यहाँ पे, अब देखो ये वी आर क्रिएटिंग इट ना, एक खाली डिक्शनरी बनाया डी नाम का, D1 1 D2 2 D3 3 D4 4, और जैसे प्रिंट डी किया तो देखो ये बन गई मेरी डिक्शनरी। ये किस तरह बना डिक्शनरी, कोई बता सकता है? पुटिंग सिंगल एलिमेंट एट वन Index टाइम। number use. इंडेक्स नंबर से, या इंडेक्स नंबर ठीक नहीं बोलेंगे बेटा, हम बोलेंगे की वैल्यू, की पॉइंट दिया जा रहा है। इंडेक्स नंबर तो नॉर्मली 0 से चालू होता है, ठीक है? इंडेक्स नंबर स्टार्ट्स विद 0। यहाँ पे उसने क्या क्या इंडेक्स नंबर नहीं दिया, यहाँ पे ये जो है ये है हमारे की पॉइंट है। की पॉइंट बताया गया कि इसका भाई की पॉइंट ये होगा, और ये सब जो 1 2 3 है ये सब वैल्यूज है, की वैल्यूज है। तो यू कैन क्रिएट अ डिक्शनरी बाय मेंशनिंग द की पॉइंट विद इन स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू वॉट एवर वैल्यू यू वांट टू पुट। तो एक एक करके यहाँ पे एलिमेंट बनाया गया डिक्शनरी का, 4 लाइन पे 4 एलिमेंट बनाए गए बजाय एक साथ चारों के। तो इस तरह जब हम प्रिंट डी कर रहे हैं तो ये देखो हमारी डिक्शनरी तैयार हो गई। ये रहा हमारा पॉइंट 1 2 3 4, और ये अंडरलाइन वाला हो गया वैल्यूज, ONETWOTHREE, ये बन गई वैल्यू। ठीक, आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, बस यहीं पे खत्म करेंगे। सो a quick revision of the things, how to create a dictionary. Way number 1 is by using a simple braces empty. Way number 2 by writing all the elements with key point key value. Way number 3 by using the keyword dict. And the last one that we have seen is creating the dictionary one by putting one element at one time. So हमने यहाँ पे देखा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस तरह एक एक एलिमेंट डाल रहे हैं और हमारी डिक्शनरी बन गई। तो इस तरह से हमारे पास इतने सारे मेथड है एक डिक्शनरी को बनाने के। ओके, सो द लास्ट टॉपिक एज आई सेड, थोड़ा सा देख लेते हैं, एक्सेसिंग द एलिमेंट्स। ये एक डिक्शनरी बनी है जिसमें कुछ एलिमेंट्स है। नाउ सी इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अनऑर्डर्ड। स्ट्रिंग है, नंबर है, स्ट्रिंग है, और ये सारे स्ट्रिंग है। की जो आपके पॉइंट है नेम एज क्लास, एक डिक्शनरी बनाया। ठीक, अगर हम लिखें प्रिंट डिक्ट नेम तो क्या प्रिंट होगा? सीट only Ria. Ria. It's not going to print the complete dictionary, but it is only going to print the value of key point name, because आप एक को प्रिंट करने बोल रहे हैं, की पॉइंट को रिफर कर दिया है। थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ कंफ्यूज मत होना। प्रिंट ये डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है तो ये एज इट इज प्रिंट होगा, क्योंकि ये इन दोनों डबल कोट्स में लिखा है, और ये वो है जो प्रिंट कर रहा है एक्चुअली। प्रिंट करो डिक्ट का, कौन से की पॉइंट की बात हो रही है? नेम की वैल्यू को प्रिंट करो, तो इसलिए सिर्फ रिया प्रिंट होगा। मैं इसे और थोड़ा अच्छे से बता देता हूं, एक मिनट ध्यान दो। मान लेते हैं ये पहली लाइन है, डिक्ट दिया हुआ है, ये जो मैंने टिक किया। अब मैं दूसरी लाइन में लिख रहा हूं प्रिंट
ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं डिक्ट ब्रेसेस के अंदर लिखता हूं क्लास। तो कोई मुझे बता सकता है आउटपुट क्या आएगा? व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ दिस? Second. सेकंड, एब्सोल्युटली, सिर्फ और सिर्फ मुझे दिखेगा सेकंड। यहां पे ये हिस्सा मतलब ये देखो आउटपुट में डिक्ट नेम रिया, ये डिक्ट जो डब्बा मैंने अभी बनाया वो क्यों प्रिंट हो रहा है? क्योंकि मैंने प्रिंट के साथ ये कमांड दिया है डबल कोट्स के अंदर, और ये वो कमांड है, ये अंडरलाइन वाला जो वर्ड है अभी अंडरलाइन जो कर रहा हूं, ये प्रिंट कर रहा है इसको, अंडरलाइन रिया को। ये बात समझ में आई है सबको? यस और नो? Yes, sir. ओके, ठीक। तो एक तरीका हो गया, इस तरह से मैंने क्या किया, अपना इसको प्रिंट किया, की पॉइंट की मदद से की वैल्यू को प्रिंट किया। ठीक उसी तरह दूसरा एग्जांपल दिखा रहा है नीचे में, देखो ये प्रिंट डिक्ट एज, तो वो 7 क्यों प्रिंट कर रहा है? क्योंकि एज वाले पॉइंट की वैल्यू है 7, तो इसलिए प्रिंट कर रहा है। ओके, नाउ कैन एनीवन एक्सप्लेन मी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वन? ये जो डब्बा मैंने बनाया इसमें क्या हो रहा है, कोई बताएगा? So we are giving command for the key. Where key point is Aman. Is there a key point called Aman? है? नहीं है, No, not sir. present. No, So that is sir. why it is giving an error. Error. वो एक एरर दे रहा है, ये रहा वो एरर, देखो भाई अमन नाम का तो की पॉइंट है नहीं, तुम कैसे प्रिंट करवा रहे हो? सो की एरर, अमन कोई एरर नहीं है ऐसा की नाम का, ठीक है? सो दिस इज हाउ इट विल गिव द एरर। ओके, सो फॉर टाइम बीइंग टुडे दिस इज ओनली एनफ। यू कैन प्रैक्टिस दिस थिंग इन योर पाइराइट, यू आप अपने पाइराइट में से मोबाइल ऐप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, बेटा अटेंडेंस किन 2 लोगों ने नहीं भरा, एक बार नाम बता दो मुझे ताकि मैं उनका मार्क कर सकूं।